after a lot of exchange of opinion, we have almost reached this conclusion. It is not yet final. We are going to hold our national executive meeting maybe at the end of this month, where venue as well as topic will be finalized. All of you are requested, number one, to participate and present papers. Number two, to hold the half day or one day seminar discussion in your own respective place. So this is the information that I wanted to give to the audience. So thank you so much, sir. This is very important information, and I think it is well in advance, where we can plan accordingly for next seminar in Chennai. I think local venue is need to be decided, but overall, it has been decided that it will be held in Tamil Nadu, right? And it will be around health or service sector or some kind of things, but a uh, formal approval from NEC is required. That is why we are scheduling the meeting, and, I think with your approval we should move forward for the discussion. And Yes, of course, yes. thank you, sir, for confirmation. And I think my screen is visible, which is the brief notes prepared by me for this discussion, and especially from that paper which I have already communicated in the groups that this paper will be discussed in our next study circle discussion, that is as fixation by sanction, harm, fear and smoke. This is the topic, and for simplification हम लोग कह सकते हैं कि इसको सफोकेशन सब से भी सिनोनिमसली हम लोग कह सकते हैं कि सफोकेशन बाय सैंक्शंस, बिकॉज बहुत सारे लोग इस टर्म से भी फैमिलियर नहीं होंगे, बिकॉज इट इज़ मेडिकल टर्म. ओके, and the colon, harm, fear and smoke, right? And this paper, working paper rather, has been written by the former governor of Reserve Bank of India, Urjit R. Patel, and now this paper is uh, uh, with the National Institute of Public Finance and Policy, right? And this paper has been posted or uploaded on the website of this institute, National Institute of Public Finance and Policy. And in many policy circles this paper has been discussed. Many people are discussing this paper, and especially about the sanctions, the nature of sanctions and many things. And even several articles are being appeared in mainstream newspapers about this article. Many people has referenced this article, right? So I will briefly present the key essence of this paper, and on the basis of that we can give our inputs, our opinions and our suggestions also. We can build up our understanding also on the basis of this paper, right? So with this I will start speaking about some points, but before that I have also tried to give a definition based on some online materials which has been posted by Britannica Encyclopedia, Oxford and some official sources. And of course this is about the economic sanctions, right? So economic sanctions briefly are the government imposed restrictions such as trade bans, asset freezes, financial limits, or travel prohibitions targeted at states, organizations, or individuals to compel or prevent a specific behavior for political, security, or policy objectives. These measures are enacted unilaterally or multilaterally, typically grounded in law, right? And intended as temporary pressure tool to influence the change, right?
This definition has been you can say adapted from these particular sources. And now I will read out a brief abstract given in this paper, right? And the abstract goes in this way. क्या कहता है abstract, उसको हम लोग समझते हैं. The current century has witnessed a deluge of economic sanctions. मतलब ये कि ये जो सेंचुरी है, जो करंट सेंचुरी चल रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शन का, या कहें कि आर्थिक प्रतिबंध, मतलब आर्थिक प्रतिबंध कह सकते हैं हिंदी में इसको, सैंक्शंस को. तो आर्थिक प्रतिबंधों का एक बाढ़ जो है उस तरह का मतलब सिचुएशन फेस कर रहा है विद द अटेंडेड इंट्रोपी, राइट. फॉर्मल एम्पिरिकल फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्चर्स सजेस्ट दैट द सैंक्शंस हैव बीन for the most part ineffective in realizing the diplomatic objective of the sanctioners. So what is hypothesis? Hypothesis ये है कि जो भी ऑब्जेक्टिव बताता है सैंक्शनर, जैसे एग्जांपल के तौर पर सैंक्शनर वो होगा जो सैंक्शन लगाता है, तो उसका जो भी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव रहा है, यहाँ सीधे सीधे लिखा गया डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि इट हैज़ डिप्लोमेटिक गोल्स. द इकोनॉमिक सैंक्शंस हैज़ डिप्लोमेटिक एज वेल एज यू कैन से जियोपॉलिटिकल गोल्स. तो उसमें ये पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव होता था उसको रियलाइज करने में वो इनइफेक्टिव रहा है, अप्रभावशाली रहा है. द लेंस थ्रू विच द ब्रॉडर सब्जेक्ट इज एनालाइज्ड कैन परहैप्स बेनिफिट बाय फर्स्ट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग एक्सटर्नलिटीज़. मतलब आप ये कह सकते हैं, एक अगर बैंकिंग के हम टर्मिनोलॉजी में एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो रिस्क हम कह सकते हैं, या वैसी परिस्थितियां कह सकते हैं जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो अपने से डिसाइड हो, जैसे नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसको भी एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं. तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज कर रहा है और इनकॉर्पोरेट कर रहा है एक्सटर्नलिटीज़ को, कि सैंक्शन से क्या एक्सटर्नलिटीज़ हो सकती है. सेकेंड, an acknowledgement that degrading a target economy is a time consuming process rather than an event, and immediate outcomes should be appropriately granularized. In bracket, active sanctions may already be doing this. तो कह रहा है कि कोई अगर टारगेट इकोनॉमी है तो टारगेट इकोनॉमी को कैसे धीरे धीरे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के द्वारा टारगेट किया जाता है. ये जरूरी नहीं कि इमीडिएट इम्पैक्ट ही दिखे, लेकिन धीरे धीरे उस टारगेट इकोनॉमी को कैसे बर्बाद किया जाता है, कैसे उसको डिग्रेड किया जाता है, ये इसका टारगेट होता है. थर्ड, lifting the smog by distinctly estimating the incidence on diverse stakeholders of welfare cost of the sanctions, counter sanctions and secondary sanctions, including linked threats. These poses a global risk as source of systemic economic financial uncertainty. तो एक तरफ से इंडिकेट ये किया जा रहा है कि जो ये स्मॉग है सैंक्शन का, जो ऐसे ऑन द फेस वैल्यू नहीं दिखता है, लेकिन जब इसको हम एनालिसिस करते हैं तो ये पता चलता है कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टेमिक, यहाँ सिस्टेमिक लिखा गया, मतलब होल स्केल पर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो क्रिएट होता है, जो कि एक ग्लोबल रिस्क है, उसका भी हम सामना करते हैं जब डाइवर्स स्टेक होल्डर्स को हम एनालाइज करते हैं. So, the extent gap in the work of multilateral financial institutions belie their role as unbiased arbiters of the assessing policy of their members. And now ये एब्स्ट्रैक्ट ये भी बात करता है कि ये साफ साफ गैप दिखता है जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि कैसे वो अपने रोल को मतलब विलाई कर रहे हैं और एक अनबायस्ड आर्बिटर्स के रूप में इन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहें कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो इस तरह के सैंक्शन को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट. So, moving towards the introduction of this paper, and this is very important to understand that why this paper is important. He argues, Mr. Urjit R. Patel argues in introduction in the first paragraph of this introduction, and he says that the time will tell if we are in an era of war,
but undoubtedly we are in the era of economic sanctions. And he has given a reference, a very interesting reference in this, and he says that apparently sanctions or embargoes have been around for millennia, right? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बताते हैं कि सैंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है. द मिगारियन डिक्री इन 432 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट 432 BC में ही is one of the earliest chronicle ones when Megarians are forbid from using the forts and markets of the Athens. So he is saying that it has a long history, right? It is not a new thing, and this is continuing. So few will disagree that a scale of sanctions this century has contributed to global economic disorder. So he is saying that कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन का जो स्केल है वो किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को बढ़ावा दे रहा है. एंड देन ही आर्ग्यूज दैट in case one was to summarize in a sentence the disquisitions on economic sanctions, it could be following. And what is following? If war is the pursuit of diplomacy by other means, the economic sanctions are an instrument to inflict damage by an alternative agency. तो कहते हैं कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो वार है वो डिप्लोमेसी का परसूट है अदर मीन्स के द्वारा, अदर साधनों के द्वारा, उसी तरह से इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनता जा रहा है डैमेज इन्फ्लिक्ट करने का बाय अल्टरनेटिव एजेंसी. वो एजेंसी क्या हो सकता है वो आगे इसमें डिस्कस किया गया. In second paragraph, he is also making a big statement, and that is sanctions are akin to laying a slow burning siege. क्या है इसका मतलब? कि धीरे धीरे स्लो बर्निंग सीज का यही मतलब हुआ कि किसी भी इकोनॉमी को धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से सीज कर देना या उसको बर्बाद कर देना, राइट? So I am just reading the important paragraphs, or you can say key points. So it has been argued with justification that wide-ranging cross-border economic curves has increasingly been a subterfuge for pursuing mercantilist trade and investment policies against foreign national champions. I have been kept मीन्स कि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन उन्होंने इस पेपर में इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि इसको एक सबटरफ्यूज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो है मर्केंटलिस्ट ट्रेड को बढ़ाया जा सके. दिस इज द आर्गुमेंट. सो व्हाट ही इज सेइंग इन नेक्स्ट paragraph, he is saying that to use a central banking terminology, the impact on current and potential output of an economy compared to a conflict-free base path is felt almost instantaneously in a military war. But with sanction, तो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि जो फुल ब्लोन या फुल स्केल वॉर होता है और जो ये वॉर है सैंक्शन वाला वॉर है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो भाई उसमें जो वॉर होता है इंस्टेंटली आप फील करते हैं कि मिलिट्री वॉर में क्या डैमेज हो रहा है, लेकिन सैंक्शन में क्या होता है? बट विथ सैंक्शंस द सैंक्शन कंट्रीज नेशनल बैलेंस शीट इज डिग्रेडेड ओवर टाइम. तो धीरे धीरे सैंक्शन कंट्री का पूरा बैलेंस शीट जो होता है उसको खत्म किया जाता है, धीरे धीरे उसको डिग्रेड किया जाता है. एंड नाउ ही इज सेइंग दैट द लिटरेचर इज फोर्थ राइट that economic sanctions curbs on, and what is the economic sanctions he is mentioning. So economic sanction dash curbs on trade and shipping, banking, payment channels, capital markets, insurance, condition on assets and liabilities of multilateral development banks are a substitute for military war for lining up the diplomatic agenda. So clearly he is mentioning that सब जो मिलिट्री वार होता है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिप्लोमेटिक एजेंडा को पूरा किया जा सके. एंड ही इज गिविंग द डेटा, सी टेबल 1 एंड हियर इज टेबल 1. द गोल फॉर सैंक्शन 2000 to 2022, क्या ऑब्जेक्टिव रहा है सैंक्शनर का जो सैंक्शन लगाता है? देख लीजिए यहाँ पे डेटा दिया है. अगर पहला हम यहाँ पर वो करें तो ये देख सकते हैं कि वॉर को एंड कराने के लिए 129 सैंक्शंस लगाए गए, वार को रोकने के लिए 68 लगाए गए, टेररिज्म को रोकने के लिए 88 लगाए गए, पॉलिसी चेंज कराने के लिए
119 लगाए गए। रिजीम को डीस्टेबलाइज करने के लिए, कहीं की सत्ता व्यवस्था को डीस्टेबलाइज करने के लिए 10 लगाए गए। ह्यूमन राइट्स के नाम पर 226 लगाए गए। डेमोक्रेसी के नाम पर 176 लगाए गए। और इसमें भी शामिल है, मतलब अगर हम कहें कि पॉलिसी चेंज की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी शामिल है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो मतलब ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो सैंक्शनर होता है वो क्या क्या बेनिफिट चाहता है, इसके बारे में इसमें बात की गई है। और इसी तरह से केवल सैंक्शन ही इसका पार्ट नहीं है, काउंटर सैंक्शन भी इसका पार्ट है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। एंड सेकेंडरी सैंक्शंस आर आल्सो द पार्ट ऑफ मेन सैंक्शंस ही इज मेंशनिंग इन दिस पैराग्राफ, द नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट? So I will move, or we can say I'm jumping to other part of this article, because some parts is very you can say typical from our perspective, because they are expressed in terms of you can say banking terminology. And now here is the impacted sector in India of India, table number 2 you can see. तो जो इम्पैक्टेड सेक्टर है वो कौन कौन इम्पैक्टेड सेक्टर रहा है इस सैंक्शन से, वो क्लियरली दिया गया है। जैसे एग्रीकल्चर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट 1 है, फिनेंशियल 4 हैं, फूड एंड बिवरेजेस, मतलब इन सेक्टर के इतने एंटिटीज जो हैं सैंक्शन से प्रभावित रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित रहा है शिपिंग एंड मैरीटाइम, राइट? 9 entities are being impacted by the sanctions, and then financial, then petrochemical, and rest are less, right? और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? कहने का मतलब कि जिस कंट्री से इंडिया का रिलेशन है उस रिलेशन के हिसाब से आप देखें कि जैसे अभी आप देखिए कि रशिया के साथ जो इंडिया का रिलेशन है, एंड दैट इज़ वाई टैरिफ इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो अगर चाइना से बात करें तो एक एंटिटीज पर उसकी वजह से, उससे रिलेशन की वजह से लगाया गया, हांगकांग पर एक, इंडिया के ऊपर 16, ईरान से 1, नॉर्थ कोरिया से 1, रशिया से 4, यूएई से 5। एंड नाउ द author is giving an example of Iran and India relationship, that is the Chabahar I think port, and he is mentioning at this or in this paragraph, the uncertainty and trepidation around secondary sanction is not theoretical. He is saying these secondary sanctions are not only uncertain and trepidation and not theoretical, rather anticipation effects on investment are real. Ponder over following timeline of the development of Iran's Chabahar port with Indian investment, and he is giving the timeline. And I will just read out to understand that what is the impact of the sanction on the bilateral relationship between India and Iran. So what he is stating, talks started in 2003. Subsequently, US sanctions targeting Iran put a hard break. जैसे ही टॉक स्टार्ट हुआ यूएस ने सैंक्शन लगाया और हमारा जो ये टॉक था वो तुरंत जो है टूट चुका था। Second, talks revived after US eased sanction in 2015 under Iran nuclear deal. तो जब ओबामा थे, न्यूक्लियर डील हुआ दोनों के बीच में, तब जाके सैंक्शन थोड़ा सा लूज किया गया, एंड देन टॉक्स रिवाइव। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2003 एंड 2015? तो लगभग 10 साल का डिले इसकी वजह से हो गया। एंड ऑफ कोर्स इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग द एस्केलेशन कॉस्ट, सो देयर आर सीवियर एस्केलेशन कॉस्ट ड्यू टू दिस डिले। Next point, tripartite agreement signed by Iran, Afghanistan and India in 2016 because of easing the sanction, right? 2017 में फिर क्या हुआ? The first shipment of Indian wheat to Afghanistan was unloaded at Chabahar, मतलब 2017 में ये हुआ। फिर 2018 में क्या हुआ? The US withdrew from the nuclear deal and reintroduced the maximum pressure sanction on Iran. This limited operation at Chabahar port. तो तुरंत फिर से रिस्ट्रिक्टेड हो गया, शुरू हुआ लेकिन फिर से रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब 2024 में क्या होता है? आफ्टर इंडिया हैज साइंड अ 10-year एग्रीमेंट विथ ईरान टू डेवलप एंड ऑपरेट चाबहार पोर्ट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एट प्रेस ब्रीफिंग इन मे सेट, कोट, एनी एंटिटी, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of potential risk that they are opening themselves to
and potential risk of sanctions unquote. India has been warned. और ये कब का टाइम था? ये टाइम था जो बाइडन का, राइट। तो ये इस पेपर में ये बात बताया गया है कि किस तरह से सैंक्शन के माध्यम से पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर या इकोनॉमिक ऑर्डर को किस तरह से अपने डिप्लोमेटिक जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक गेन के लिए, प्लीज किसी का भी अगर माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए क्योंकि इको कर रही है आवाज। फिर आगे इस पेपर में ये बात कही गई है कि डिजोनेंस क्या है। डिजोनेंस मतलब वही कि जो टारगेट सेट किया जाता है सैंक्शन के माध्यम से, तो क्या वो इफेक्टिवली अचीव किया जाता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स गिवन इन दिस पेपर एंड एज लाइक डिजोनेंस 1, डिजोनेंस 2, डिजोनेंस 3, डिजोनेंस 3, 4, 5, 6 and 7, right? So you can go through this these examples and dissonance in order to understand the sanctions and its effectiveness or ineffectiveness. And he has argued on the basis of some data, right? So I'm not going to read that out, but I will suggest to go through these dissonance. And then important point is dissonance 2, dissonance 3, like this. I'm not going to read because there are some mathematical calculations also, right? So I'm not going into that, but I will directly come to I think conclusion part, right? What he has said in the concluding remarks at paragraph point number 5, you can see, and even I can zoom because this conclusion is very, very important, right? So what he says, until recently, sanctions has not been appreciable part of Asia's political and diplomatic history, but given the continent's rise, its cooperation and the corollaries from it become important. तो शुरू में ये कहा जा रहा है कि ये अप्रिशिएट नहीं किया गया इनके, मतलब एशिया के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री से, बट जैसे जैसे इनका राइज होना शुरू हुआ, आपस में कोऑपरेशन करना शुरू किए, नाउ these things are becoming very, very important. So what is the first conclusion? The first conclusion is that regardless whether sanctions has been successful or effective in helping to realize the terminal ambitions of sanctioners, it must be unequivocally acknowledged that the sanctions and secondary sanctions are a sizable and growing source of international macroeconomic uncertainty, leading to concomitant volatility and instability for many countries and touching the global investment climate. So he is saying that these sanctions are impacting the uncertainty in global market. They are impacting negatively the global investment climate, right? Now the second, the smog around sanctions and secondary sanctions for victims. Who are the victims? On those countries on which the sanctions has been imposed, वो countries है जिन पर sanction impose किया गया है। तो जो sanctions है, smog around sanctions and secondary sanctions for victims, in bracket many in emerging economies and voters in developed countries, need to be lifted by dynamic estimates from impartial stakeholders on implications, especially for those at receiving ends of curbs and threats. कह रहे हैं कि जो विक्टिम है, वो विक्टिम कौन है? वो कंट्रीज हैं जो इमर्ज कर रही हैं, और वो वोटर हैं जो डेवलप कंट्री में हैं। तो ये स्मॉग जो है ना, इसको लिफ्ट किया जाना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि इसका क्या नतीजा निकल रहा है, इस कर्ब्स और थ्रेड्स का क्या नतीजा निकल रहा है। सो हाउ मेनी economies are affected in what manner? Presently there is inadequate, easily understood, publicly available information. तो कह रहे हैं कि इस पे डेटा का अभाव है अभी भी, राइट? एंड द फुल एंड रिफाइंड इम्पैक्ट्स आर ऑब्फुस्केटेड। तो जो भी रिफाइंड या फुल इम्पैक्ट है उसको अभी भी मतलब पूरी तरह से सामने नहीं लाया जा रहा है। Who amongst third countries bears the cost of sanction and secondary sanctions cannot be answered with requisite accuracy, comprehensive and careful calculation are
absent. सो अभी भी इस पर स्टडी की कमी है, इस गैप को यहाँ पर रेखांकित किया करने का प्रयास किया जा रहा है. एंड व्हाट इज द थर्डली, फंड शुड अनएम्बिगुअसली इनकॉर्पोरेट सैंक्शंस. तो जो भी फंडिंग डेवलप कंट्री के द्वारा किया जाता है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि फंड शुड unambiguously incorporate sanctions, counter sanctions, and secondary sanctions as representing different, not necessarily wholly disassociated drivers of policy spillovers. This is pertinent given sanctions are headwind that does not subside, only strengthens over time. तो जो पैटर्न ये इन्होंने ट्रेस किया वो ये कह रहे हैं कि धीरे 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 ये सैंक्शन जो है कम नहीं होता है, सबसाइड नहीं होता है, धीरे 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 ओवर द टाइम ये बढ़ता ही जाता है. And fourthly, the proclivity of academic discussion on economic sanctions in US G20 centric. तो अभी भी डिस्कशन जो चलता है इकोनॉमिक सैंक्शन के ऊपर, मीन्स इट ही इज ऑल्सो हाईलाइटिंग द गैप बिटवीन द वेस्टर्न सेंट्रिक डिस्कशन एंड ओरिएंटल सेंट्रिक डिस्कशन और डेवलपिंग कंट्री सेंट्रिक डिस्कशन, राइट. तो अभी भी ये डिस्कशन इकोनॉमिक सैंक्शन यूएस और G7 के सेंट्रिक चल रहा है. अ नियो कोलोनियल माइंडसेट that it is natural to control the periphery's destiny is betrayed, right. The fifthly, the rise of China, which geographically straddles Asia and through its strong ally Russia, Europe is a profound additional facet. The land bridge enterprise of Belt and Road Initiative includes Africa, in bracket, imaginally via the Sinai Peninsula. The clandestine support to diverse players that is facilitated by BRI pose a form of regional contagious depending on one's viewpoint, lifeline और calibrated domination. तो ये चाइना की भी बात की जा रही है कि इसका चाइना का राइज किस तरह से हो रहा है, किस तरह से आने वाले समय में इनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है. एंड सिक्स्थली, the tension in sanctions arena may escalate soon as counter programming by countries to reduce the dependence on global numeric currency move forward, and steps by US to counteract the trend will doubtless gain momentum with new administration. So this is the last point of this paper. So I have briefly tried to give the essence of this paper, right. And now I am hopeful. Now Parnav sir is also here, Sunil sir is here, Anil sir is here, and all of the participants. So I have briefly tried to present the idea of this paper, and now it is a forum is open for open discussion. So thank you so much. I am stopping the screen sharing, and now I will request everyone to participate in this discussion. Thank you. Hello. Yes, sir. There is such a long silence that I had to join. I'm just shocked, it seems. This revelations in the paper, what to say. Yes. तो सबसे पहले तो मैं अमित जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई. उन्होंने बहुत अच्छा पेपर सिलेक्ट किया है. दैट इज अ वेरी गुड पेपर. और अमित ने बहुत अच्छे ढंग से इसको पेश किया. He has been reading a lot and he has been selecting good papers. That is also a big job. दूसरी बात यह है कि ये पेपर एक ऐसे व्यक्ति का है, डॉक्टर सुरजीत पटेल, जो आरबीआई के गवर्नर रहे. So his paper is not ordinary. It is not just one of the papers. आरबीआई के गवर्नर होना
साधारण बात नहीं है। और ये ध्यान रहे कि आरबीआई इज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑन मेनी इश्यूज विद द गवर्नमेंट। आरबीआई में डॉक्टर रघुराम राजन रहे हैं, शक्ति शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, हाँ करेक्ट रहे हैं। आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिस्ट्स have headed the RBI. That is very, very important. It is very interesting, and I think that I suggest that everybody must read this paper. There are a lot of technical things also, you can give it up. टेक्निकल चीज़ों को आप हटा दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक शुरू में इस पेपर के बिल्कुल शुरू में एक बात कही गई है, बड़े इंटरेस्टिंग है। और शुरू में ऊपर दिया जाता है ना एक वॉच जिसको बोलते हैं, फर्स्ट पेज नंबर 1 में लिखा हुआ है, या उर्जित पटेल का नाम लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे टाइम विल टेल इफ वी आर इन एन इरा ऑफ वॉर। ठीक है ना, समय बताएगा कि हम युद्ध के युग में हैं कि नहीं। बट अनडाउटेडली वी आर इन द इरा ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस। वेरी apt comment, very profound comment, I should say. Economically and politically and ideologically, very profound. इससे याद आती है लेनिन का ने जो भविष्यवाणी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस, बढ़ता हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस है वर्ल्ड इंपीरियलिज्म का, ये डिवीजन एंड रीडिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है। तो ये बात इसमें निहित है एक तरह से कि वी आर इन द इरा ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड इट मे लीड टू एन इरा ऑफ वॉर। तो द imperialist, the US and other imperialist countries, particularly the US, is trying to foist, if not world war, then local wars definitely are being foisted. Then एक पेज नंबर 6 पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट इन्होंने दिया। पेज नंबर 6 पर अगर आप आए तो पेज नंबर 6 में उन्होंने पॉइंट नंबर 4 है लास्ट में पेज पे, इसमें उन्होंने बहुत मीठे तरीके से यूएस पर अटैक किया है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, द यूएस इज द हेजेमोनिक सैंक्शनर। आई हैव शेयर्ड ए स्क्रीन ऑल्सो, हम स्क्रीन भी शेयर कर दिए हैं, पूरा पैराग्राफ का स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। हाँ एकदम, हाँ यस करेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं उर्जित पटेल कि यूएस इज द हेजेमोनिक सैंक्शनर। तो सैंक्शन लगाने वाला ही नहीं है सर, सैंक्शन लगाने वाले दुनिया में बहुत सारे देश हैं, ज्यादातर जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड देश है वो है। ये हेजेमोनिक सैंक्शन है, प्रभुत्ववादी, प्रभुत्वकारी सैंक्शन लगाने वाला है, कोर्ट्स में दिया है। और नीचे कहा है फुटनोट में कि इट इज एनालॉगस टू लेबलिंग द यूएस एज एन इकोनॉमिक हेजेमन, एन एक्सप्रेशन दैट इज वाइडली यूज्ड। अब ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है apology मांगा है, caution and apology, that is very interesting. Can you read that? The paper may strike as biased. हो सकता है कि पेपर लोगों को लगे कि ये एक तरफ झुका हुआ है। However, given the undoubted preeminence by considerable distance of the US government as policy practitioner around the sector, so it cannot be helped. मैं क्या करूँ, जो यूएस गवर्नमेंट जिस तरह से इस पॉलिसी को प्रैक्टिस कर रहा है और दूसरे देशों से काफी आगे है इसमें, बाय कंसिडरेबल डिस्टेंस,
तो ऐसे में पेपर को बायस अगर हो रहा है पेपर में बायस तो आई कैनॉट हेल्प इट. सो he has given with the help of data, facts, figures. अभी अमित ने पढ़ा कि चबहार पोर्ट में किस तरह से सैंक्शन लगाया, सैंक्शन हटाया, कम किया, ज्यादा किया, according to the change in the governments in the United States and change in the local power balance in this area. So, sanction सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक टूल है वर्ल्ड इंपीरियलिज्म का, जो कि उभरते हुए डेवलपिंग कंट्रीज को दबाने के लिए, उनको फोर्स करने के लिए कि भाई तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हम सैंक्शन लगा देंगे, तुम्हें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम सैंक्शन लगा देंगे, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा आयरन, स्टील, कपड़ा, धागा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लिस्ट दिया हुआ आगे टेबल है, उसकी लिस्ट दी हुई है, कौन कौन से आइटम्स पर सैंक्शन कितना लगाया गया है और किस एक्सटेंट तक. बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये एक वर्ल्ड इंपीरियलिस्ट जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, खास करके यूएस, वो इस सैंक्शंस का इस्तेमाल अपने इकोनॉमी को के डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए, वो बहाना ये करते हैं कि हम अपने इकोनॉमी को बचा रहे हैं. अरे तुम्हारी इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री से थोड़ी ना खत्म हो रही है, तुम्हारी इकोनॉमी अपने फाइनेंशियलाइजेशन है, जो कन्वर्शन ऑफ प्रोडक्टिव इनटू फाइनेंस कैपिटल है, उससे क्राइसिस बढ़ रहा है तुम्हारे यहाँ. तो कितना भी प्रोडक्शन कर लो, क्राइसिस उतना ही बढ़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी. और आजकल कमी नहीं आती. अमेरिका 2008 से लेकर अभी तक जो क्राइसिस में है, उस क्राइसिस से निकला नहीं है, बल्कि और भी उसमें गहराता जा रहा है, गहराई में फंसता जा रहा है. तो उसका रिफ्लेक्शन है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये जो हेजेमोनिक सैंक्शनर है, ये हेजेमोनिक सैंक्शनर यूरोपियन यूनियन के देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, रशिया और चाइना को दबाने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर जो ब्रिक्स के देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको उनके इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाहता है. उनका एक जो नेचुरल ग्रोथ हो रहा है, मौका मिला है वर्ल्ड इकोनॉमी में आगे बढ़ने का, या वो देख रहा है अमेरिका की भाई इस फील्ड में या उस फील्ड में ये देश बड़ी तेजी से अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, अपना प्रभाव जमा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश टेक्सटाइल्स में, या भारत और दूसरे देश कई और मामलों में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में. तो उनको कैसे इस विकास को के क्रम को रोका जाए, उसके पूरे की जो धारा है, उस धारा को कैसे डिस्टर्ब किया जाए. तो ये एक तरीका है सैंक्शंस का, जो दुनिया पर धौंस जमाने का, प्रभुत्व जमाने का, और अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करने का, अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों में रोकने का. तो ये एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म है, नव उपनिवेशवाद है, नव साम्राज्यवाद है, और समय समय पर स्थानीय युद्ध छिड़वाए जाए, उनका भी एक ये तरीका है, ये टूल है, ये हमें समझना पड़ेगा. और इसलिए उस दृष्टि से ये पेपर जो है बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. इट थ्रोज लॉट ऑफ लाइट एंड लॉट ऑफ इंसाइट in this issue. We all need to study that. एक जगह फिगर है कि आउट ऑफ 687 sanctions since 2000, पेपर पेज 9, out of 687 sanctions since 2000, पेपर पेज 9 पर है. Less than 1/5 are judged total success, यानी एक 20% से भी कम को टोटल सक्सेस मिला है. और भी फिगर दिए गए, मतलब
ये जरूरी नहीं कि सैंक्शन सफल ही हो, सक्सेसफुल हो, ज्यादातर अनसक्सेसफुल है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल वेपन है, इकोनॉमिक वेपन नहीं है, पॉलिटिकल वेपन है। चारों तरफ एक इमेज क्रिएट करने का, आजकल का जमाना इमेज का भी है, तो एक इमेज, एक लोगों के दिमाग में डर, तो डर शब्द का इस्तेमाल किया है पेपर ने कई जगहों पर, और उस डर का इस्तेमाल, डर क्रिएट करने के लिए। It can be argued that the recent sanctions have not had sufficient time to gain traction and reach thresholds that force targets to change behavior. अब ये sanctions ऐसे हैं, आजकल की इकोनॉमी ऐसी है कि इनको टाइम नहीं मिलता है अपना लॉजिक प्ले आउट करने का। इसलिए जरूरी नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज या यूएस के लिए फायदेमंद हो ही। कई बार फायदेमंद होता है, कई बार नहीं भी होता है। जब फायदे देखता है कि फायदेमंद नहीं है तो वो तुरंत वार छेड़ने की कोशिश करता है। यहाँ अपना जहाजी बेड़ा उतार देगा, वहाँ एयरफोर्स उतार देगा, वहाँ इसराइल को आगे बढ़ाएगा, वहाँ और किसी देश को आगे बढ़ाएगा। तो ये एक सैंक्शंस और वार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक गलती से सर का वो कट गया। लेट अस वेट फॉर अ मिनट। आई थिंक ही विल ज्वाइन सून। यस, ही हैज ज्वाइंड। यस सर, कंटिन्यू सर। फिर चला गया। अच्छा अच्छा। चाइना के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट to be reckoned. There are three big major powers in the world. There are more, but three major: the US, Russia, and China, and some other countries also. तो चाइना का राइज जो है ये एक नए तरह का राइज है। चाइना अपने को सोशलिस्ट कंट्री बोलता है। इट इज रूल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन इसकी जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उसमें और इंपीरियलिस्ट कंट्रीज की एक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क कई बार नहीं और इसका जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल। कई देश इसे अपोज करते हैं। कई देशों का ये कहना है कि ये हमारे देश की इकोनॉमी को डिक्टेट करने के लिए या फोर्स करने के लिए शर्तें इसमें लगी गई हैं। ये चाइना को स्टडी करना जरूरी है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात कही गई है, अभी मैं निकालता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। मतलब ट्विन टावर इसके बाद, अटैक के बाद किस तरह से अमेरिकन इंपीरियलिस्ट जो दृष्टि है, और वो कैसे, हाँ ये पेज 3 पर है। पेज 2 पर फुट नोट पर आप में देखेंगे, फुट नोट नंबर 7 पेज 3 में उसमें कहा गया है द 9/11 अटैक्स इन 2001 आर साइटेड एज कैटलिस्ट फॉर यूएस स्मार्ट सैंक्शंस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये कमेंट इसमें उर्जित पटेल का। इसमें दिया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 23 सितंबर 2001 को जारी किया था, जिसमें अथॉरिटी दिया गया है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, अथॉरिटी दिया गया है टू फ्रीज द एसेट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स जो who are suspected of supporting terrorism, who are not supporting terrorism but who are suspected of supporting, उनको ये इस बात का शक अगर हो गया अमेरिकन अथॉरिटीज को, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के, कि ये जो बंदा है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो एजेंसी है, ये इसके बारे में सस्पिशन है कि ये सपोर्ट करता है टेररिज्म को, तो उसके एसेट्स को फ्रीज कर लेगा।
लगता है कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट है कोई कि जिसको चाहे उसको फ्रीज कर दे, जिसको चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स भी बंद कर दे। In conjunction with the USA Patriot Act, the Treasury Department needs, ध्यान दीजिए इस पर, Treasury Department needs only a reasonable suspicion. Suspicion reasonable होना चाहिए, और उर्जित पटेल ने अंडरलाइन किया है, एम्फेसिस दिया है, माई एम्फेसिस लिखा है उन्होंने। नॉट नेसेसरीली एनी एविडेंस, एविडेंस की जरूरत नहीं है टेररिज्म के लिए। ये अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मामला है, ये वो उसको एविडेंस की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट को। तो वो टारगेट करेगा व्यक्तियों को, एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस पर सैंक्शन लगाने, उनके एसेट्स को भी कब्जा कर ले, फ्रीज कर लेगा, उनके बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प टेंडेंसी है अमेरिकन पॉलिसी में कि किस तरह से वो अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश। वो समझता है कि मेरा पूरा डोमिनेंस है, मेरा पूरा कब्जा है दुनिया पर, मैं दुनिया का एक पुलिसमैन हूँ, गवर्नमेंट, मैं दुनिया की देखभाल करता हूँ, और जो ऑर्डर करूंगा वो करना पड़ेगा, आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा। यहाँ तक कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनको भी कहना पड़ा, उनका भी स्टेटमेंट आया, नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वो सारी दुनिया के मालिक हैं, सारी दुनिया के लॉर्ड हैं, और उनकी कही हुई बात, वो टैरिफ के मामले में कहा था, उनकी कही हुई बात को सिर झुकाकर लोग सुन लें, ये वो समझते हैं अमेरिकन। तो ये जो पोजीशन है, ये अमेरिकन क्राइसिस को शो करता है। अमेरिकन इकोनॉमी में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज क्राइसिस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। आने वाले समय में इसके ज़्यादा एविडेंस मिलेंगे। उस सिलसिले में, उस कॉन्टेक्स्ट में टैरिफ्स एंड सैंक्शंस के बढ़ने का खतरा दुनिया पर बन रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कमेंट्स समाप्त करूँगा यहीं पर। बहुत अच्छा पेपर है, इसको हम सभी को पढ़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। कमिंग एज इट इज फ्रॉम फॉर्मर गवर्नर ऑफ the RBI, Mr. Urjit Patel, very well written, very objective, and he has used dialectical method and analysis of world economy. It's really something very interesting and very knowledgeable, and we should, very educative rather. Thank you very much. So, as we are discussing about sanction, as well as I think in our previous discussions we have many discussions on trade and tariff wars, right? And I think this trade and tariff war is being fought in close conjunctions with the sanction regime, right? The sanction is operating, I think, in collaboration with these policy regimes, that is trade and tariff wars and geopolitical goals. As Trump has said and announced that we are going to impose more sanctions on Russia, we are going to impose more tariffs on India, and he is also claiming, and it becomes very relevant in context of Alaska talk and Alaska meet, where before departing from United States of America, he said in press that it was sanction on tariff on India. That is why Russia was pressured to come to Alaska. So it means that these things are operating in close conjunction in order to achieve the geopolitical goal or geo-economic
economics goal of United States of America, and we should not have a certain any kind of hesitation that America is treating themselves, or America as a country, a singular country, is treating as a imperial or royal power, right? That he has to do something. He will establish peace, he will establish order, he will establish democracy, and he will decide what will be the moral values, ethical values, and all kind of values across the world, where you are big country, a small country, whatever. So I think Parno sir and Sunil sir and other participants will also reflect on that. And in meantime, if someone has any question, they can also ask, so the participants can answer those questions. Yes. Yes, hello Amit. Yes, Bajendra. हेलो टू एवरीवन एंड थैंक यू अमित, आपने जो उर्जित पटेल का ये जो पेपर शेयर किया है, इसको मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी जो डिस्कशन में आया है ये पेपर काफी, जैसा अनिल सर कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव है, और इसमें एक जो डायलेक्टिक्स एनालिसिस दिखता है वो भी है। मुझे याद आ रहा है कि कुछ चीजें अभी जो हुई हैं 13, 14, 15, 16 तक हम जो AIPF के एनुअल सेमिनार्स में हमारी थीम होती थी प्रोडक्टिव कैपिटल वर्सेस फाइनेंस कैपिटल, पोस्ट कैपिटलिज्म को लेकर, वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस को लेकर, उसमें ये जो स्टेज अभी हो रही है ये थोड़ा बाद की दिखती थी, लेकिन उसमें जो एक साइंटिफिक एंटिसिपेशन था जो अनिल सर के पेपर्स में रहा है क्वांटम फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के नेचर को लेकर, ये कितना स्पीड अप कर रहा है। तो ये स्पीड अप अपने आप में दिखाता है कि जस्ट जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का पहला फेज था जिसमें टैरिफ वॉर आया, ट्रेड वॉर आया बिटवीन चाइना एंड USA, वो इस स्टेज पे आ गया इतनी जल्दी, क्विकली। एटलीस्ट ये तो अनइमेजिनेबल है अगर हम एक नॉर्मल लॉजिक से देखें पूरी दुनिया में। उस सेंस में कहीं भी ये किसी इमेजिनेशन का या साइंटिफिक फोरकास्ट का हिस्सा हो ही नहीं सकता था। अगर टिपिकल ट्रैजेक्टरी देखें इंडस्ट्रियल या कॉर्पोरेट या इंपीरियलिस्ट डेवलपमेंट की एजेंडा की, तो इस वे में तो ये फास्ट अप करता जा रहा है, और वो ये फास्ट अप कर रहा है, उसी से ये क्राइसिस ज्यादा तेज हो रहा है और सामने आ रहा है उभर के। इसके सेकंड फेज में जो जियोपॉलिटिक्स के क्राइसिस आए हैं, यूक्रेन और USA इज दी वन और नाटो इज दी वन जिसने ये क्रिएट करा है, तो वो क्या बंद कराएंगे? उनका तो जो भी ट्रम्प की और जो अलास्का में मीटिंग हुई है उसकी पुतिन की, इससे जो सामने आ रहा तो यही लग रहा है कि वार रोकने की कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, वार कोई प्राइमरी नहीं है, वो तो कोलेटरल डैमेज का पार्ट है। एक्चुअल प्ले तो हुई है वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हेजेमोनी है वो सामने उभर कर आ रही है, और जो USA सैंक्शंस लगा रहा है, और अब तो ट्रम्प ने ओपनली बोल दिया, जो अदरवाइज उनके प्रीडिसेसर्स जो बिल्कुल डिस्क्रीटली करते थे कि भाई ब्रिक्स को सपोर्ट नहीं करना, उसने एग्जैक्टली थ्रेट दिया कि व्हाट इज दिस ब्रिक्स, एंड एंटी डॉलर है, एंटी USA है, और हमारी गवर्नमेंट का भी जो एटीट्यूड है 14 के बाद ब्रिक्स का। अब जब ये सैंक्शंस लगे तो चाइना जा रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो ये चीजें दिखा रही कि जो एक्चुअल इशू है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, और उसमें जो पावर स्टेक होल्डर है, एक तरफ USA, एक तरफ यूरोप है, यूरोप की अपनी क्या सिचुएशन है, चाइना है, एंड फिर इंडिया लाइक कंट्रीज भी है। तो वो अगर इस चीज को समझते हैं कि ये तो एक जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, जो उसका क्वालिटेटिव जो नेचर है, उसका जो डिफरेंस है, उसके चलते स्पीड अप होके सामने आ रहे हैं क्राइसिस और बहुत बड़े लेवल पर, तो फिर इसको बेटर टैकल हो सकता है थी। अदरवाइज तो फिर ये जैसे अभी यहाँ पर है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज करो, कहीं सरेंडर करो विदाउट ए क्लियर कट डायरेक्शन, वो वाली चीज अगर दिखती है, और इसमें स्पेशली जो चाइना का भी केस है, वी नीड टू लुक एट एंड स्टडी क्लोजली कि हाउ चाइना इज यूजिंग दिस एज अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, आल्सो इंटेंट के तौर पर ना सही, क्या चाइना का और जो US का वो चल रहा है
सेट ऑफ चल रहा है दोनों के बीच में, उसको लेकर वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरह की पॉलिटिकल लामबंदी दिखती है और बाय नेचर कौन किसके साथ जा सकता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। जैसे मुझे लगता है इंडिया के केस में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि यूएसए सैंक्शंस लगा रहा है, वो मोस्टली पॉलिटिकल है, लेकिन हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अलाइन और कोविड के बाद और ज्यादा तेजी से चाइना के साथ हो गया है। तो ये और पूरी दुनिया में भी ये हुआ है। जैसे अनिल सर बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव कैपिटल को ऑन दी होल कौन सी कोर्सेज विद इन नेशन एंड इन इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस प्रोडक्टिव कैपिटल के क्या क्या कंपोनेंट, उसको किस तरीके से हम अलाइनमेंट करते हुए आगे देखने की बात कर सकते हैं पॉलिटिक्स के लेवल पर। यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी स्टैंड लिया। ये तो कुछ ट्रम्प इतना ज्यादा चल पड़ा, टैरिफ 25%, 50%, वो एक इमेज वाला इशू जो आ रहा है कि यहाँ पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को हो सकता है अपना एक इमेज का इशू हो, जो उसने बोला भी कि भाई 23 लॉज तो लेके आए ही थे, लेकिन अब बोला कि मैं किसानों के लिए अपनी उस तरह से कीमत चुकाऊंगा पर्सनली। तो ये पर्सनली चुकाने वाली जो बात आ रही है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कि सवाल ये है कि आप अपनी एग्रीकल्चर और आप अपनी इकोनॉमी को शेप अप कैसे करते हो, उसके बिना आपका रोल क्या होगा। हमारी इकोनॉमी आज कहाँ स्टैंड कर रही है और हमारी इकोनॉमी की क्या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन हो सकती है, उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट कहाँ पर फॉल्ट कर रही है, कहाँ पर वो करेक्ट कर रही है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेशली चाइना की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है क्लोजली, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि चाइना कुछ कहता नहीं है, बोलता नहीं है, बट थ्रू एक्शंस आगे बढ़ता है, बट बाय डिफॉल्ट वो हर जगह से बेनिफिट में नजर आता है। और चाइना को लेकर स्टडी की जरूरत है जियो पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते भी, चाहे अभी पाकिस्तान के साथ का इशू हो और इकोनॉमिक इशू भी हो वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यही है कि मुझे लगता है कि जो पोस्ट कैपिटलिस्ट कोर्स है वो इसमें कहाँ आता है। सर्विस सेक्टर में एआई के चलते वहां पर क्या हो रहा है, हमारे कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट किसके साथ अलाइन है, और हमारे और उसकी जो बारीकियां हैं, या यूरोपियन यूनियन में क्या चल रहा है और नाटो का क्या होगा। तो कोई पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की जो क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है हमारा नेशनल सेमिनार इसके अराउंड होना चाहिए। एक और बात थी कि 16-17 तक आते आते मुझे लगता कि ये मैंने भी कहा था, लेकिन मुझे लगता था कि वो उन पेपर्स में भी अमर्ज हो गया था कि नेशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्राइमरी होगी। ये एक चीज अब दिखती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्राइमरी हो रही है, नेशनल पॉलिटिक्स सेकेंडरी भी हो रही है। थैंक यू। So thank you Bajender भाई for highlighting the importance of topic। और उसके साथ साथ जो हम लोग मतलब पिछले दिनों में जो हम लोग का अपना अंडरस्टैंडिंग रहा है, जो ट्रेंड क्या आने वाला है, कैसे होने वाला है, और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उस पर मतलब बहुत सारी चीज़ें वो उसी लाइन पर जा रही हैं। एंड इन दिस रिगार्ड वी कैन से दैट यस वी आर एनालाइजिंग एग्जामिनिंग द थिंग्स इन गुड वे। तो और लोग भी अपनी बात कहें उससे पहले डॉक्टर इनकी आपका कुछ सवाल था कुछ। जो AIPF की आज से लेके वर्कशॉप रही हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी और पोस्ट कैपिटलिज्म या टेक्नोलॉजी को लेकर जो फोरकास्ट और डायरेक्शन या इंडिकेशंस रहे हैं, वो कंफर्म हो रहे हैं, वो कंफर्म होते हैं। yes. That's there clearly. In that way, AIPF is the only platform which have been advanced. yes. ये मुझे अभी भी बाकी जगह कहीं नजर नहीं आ रहा। और जो ट्रेड और टैरिफ वार पर भी हम लोग लगातार, हमें लगता है 4 या 5 जो उस पर डिस्कशन हुआ, तो इट वाज वेरी रिवीलिंग दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट ट्रेंड। एंड हम लोग का ये वो हो रहा था कि मतलब इस तरह का जो ये ट्रेंड आ रहा है लगातार। अब तो हमारे साथ प्रणव शेखर सर भी हैं, सुनील सर भी, मतलब काफ़ी डेप्थ में पिछला भी डिस्कशन जो हुआ था, नाउ वी आर एक्चुअली उसको हम लोग देख पा रहे हैं एग्जैक्टली कि ये होने वाला है।
एंड दैट इज़ द मतलब एक तरह से प्रिडिक्शन कि हाँ ये ट्रेंड होने वाला है। तो डॉक्टर रिंकी आप सवाल पूछें और आपको जो कहना है वो उस बात को रखें, फिर आगे और लोगों का कमेंट लें। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा मेरा एक क्या दो तीन मेरे सवाल सवाल है। पहला सवाल हमारा आपसे यही है सबसे कि क्या प्रतिबंध व्यापार युद्ध का अभिन्न हिस्सा है। दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा ये है कि जैसे कि रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है और अभी हमारे रशिया के मिनिस्टर ट्रम्प से मिलने हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि ट्रम्प के कहने पर युद्ध व्लादिमीर पुतिन रोक देंगे? क्या इसके बारे में हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं? आवाज ब्रेक होगी, मेरी आवाज जा रही है? अच्छा, मेरा यही सवाल है कि क्या ट्रम्प के कहने से व्लादिमीर पुतिन वार को रोक देंगे? क्या ऐसा लगता है कि अभी इन लोगों की जो मीटिंग हुई है इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आएगा कि क्या हो सकता है? कोई भी बताए, मेरे इस प्रश्न का आंसर कोई भी दे सकता है। 22 मिनट है। हाँ सर, डॉक्टर प्रणव सर। मेरी बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। यस यस क्लियर है। थैंक यू सर। पहली बात तो मैं ये डिफाइन करना चाहूँगा व्हाट इज इकोनॉमिक सैंक्शन, क्योंकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग टैरिफ और किसी तरह का इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन तरह तरह के हो सकते हैं। हम टैक्स लगा सकते हैं, हम ड्यूटीज लगा सकते हैं, हम टैरिफ लगा सकते हैं, हम कोटा लगा सकते हैं और हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किससे पड़ेगा? सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किससे पड़ेगा, तो हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल जो है वो सैंक्शंस है। इसीलिए जब भी कोई कंट्री वॉर कर रहा होता है, जनरली आज के समय में जब भी कोई कंट्री वॉर कर रहा होता है तो उस पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को करप्ट किया जा सके, उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर रोक लगाई जा सके ताकि वो वीक हो सकें और उनके पास उतना आर्म्स एंड एमुनेशंस के रिसोर्सेज नहीं जनरेट हो सके। तो कहीं ना कहीं सैंक्शंस आर द मोस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस इन प्रेजेंट टाइम्स। The second question which amazes me, that why US is treated as the global sanctioner? Why only US, or why the entire global fraternity is afraid of US sanctions? In fact, in the present era, जो रिंकी जी ने सवाल पूछा था उस पर मैं बता दूं कि अगर अलास्का में मीट हुई है तो मेरे हिसाब से ये पुतिन के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री, मेरे हिसाब से पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। क्योंकि देखिए मैम, पुतिन ये युद्ध जो हो रहा था यूक्रेन और रसिया के बीच हो रहा था, तो अच्छा होता कि अगर अमेरिका को बीच में इंटरफेयर भी करना था तो दोनों पार्टीज का साथ होना जरूरी था, बट देयर इज नो यूक्रेन ऑन द नेगोशिएशन टेबल, देयर इज नो यूक्रेन ऑन द नेगोशिएशन टेबल एंड इसके बाद क्या हुआ कि तो कहीं ना कहीं पुतिन की ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और
जहाँ तक इंडिया पर 50% टैरिफ या पेनल्टी की बात है, जो भी in whatsoever we can view it, it is India is just a collateral damage. India 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 is just a collateral damage in 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 this global scenario, because US can't go out and out with Russia, as Donald Trump has already given a soft stand for Vladimir Putin and Russian policies. So India is only a collateral damage to threaten Russia. And of course, why Trump has chosen India? The simple logic is that the import of oil from Russia is a great इंडाइटी फॉर इंडिया। एक पहले की बात है सर कि अमेरिका ने खुद कहा था कि ग्लोबल ऑयल बैलेंस को बनाने के लिए आप रसिया से ऑयल इंपोर्ट करो, और आज ऐसा भी नहीं है। अमेरिका खुद रसिया से बहुत सी चीजें इंपोर्ट कर रहा है। तो व्हाई इंडिया इज फेसिंग द बर्न्स ऑफ द वॉर? So India is 100% a collateral damage in this. The second thing is that पहली बात अमित जी, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने जो क्वेश्चंस उठाए, क्वेश्चंस पेपर के एंड में जो क्वेश्चन है वो जबरदस्त है, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। सो I'm really happy about it. तो मैं सब पर एक एक करके आऊँगा। तो इसमें जो पहली बात है वो मैं आपको बता दूँ क्वेश्चंस पे। यहाँ do economic sanctions function as an instrument of justice? And my answer is big no. Because economic sanctions are politically motivated. It cannot serve as an instrument of justice. If it is an instrument of economic justice, it should be imposed on a country which is looting the resources of the world. लेकिन यहाँ तो वही कंट्री सैंक्शंस लगा रहा है जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक प्लंडरिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस नहीं हो सकता सर। और जहाँ तक दूसरा बात है कि इससे पॉवर्टी बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जब रिसोर्सेज की कमी होगी सर, तो रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? जब किसी देश पर सैंक्शंस लगते हैं तो इंटरनेशनली मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, IMF या जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ये सब हैं, वो उनको लोन देना बंद कर देते हैं। तो कंट्री अपने रिसोर्सेज कहाँ जनरेट करती है? बहुत से इकोनॉमिक पेपर्स हैं सर कि कंट्री अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, सरचार्जेज लगाती है एक्स्ट्रा। तो इंटायरली द बर्डन जो शिफ्ट होगा वो आम लोगों पर शिफ्ट होगा। अगर सरकार सैंक्शंस लगने के बाद इंटरनल रिसोर्सेज से अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर रही है, तो ये आम लोगों पर शिफ्ट होगा, क्योंकि जनरली सरकार क्या करती है, वो डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं बढ़ोतरी करती। गवर्नमेंट डिड नॉट इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को लोगों को साफ साफ दिखता है। जो इकोनॉमिक्स नहीं भी जानता है भाई, उसको भी डायरेक्ट टैक्स एकदम साफ दिखता है। तो सरकार डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करेगी। अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया जाता है तो दो चीजें जनरली
ग्लोबल लेवल पर अभी तक की गई हैं इकोनॉमिक्स में। पहली चीज है कि भाई हम अपने अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं, जैसे रशिया ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि आप हमसे तेल खरीदो, बिकॉज वी आर फेसिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है। और तो हम वो करते हैं, और दूसरा अगर वो नहीं हो पाता है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू या अदर कैपिटल डिस्बर्समेंट के थ्रू, जो प्रूव्ड डाटा है उसमें है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और कैपिटल डिस्बर्समेंट के थ्रू कंट्री रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश करती है। और इनडायरेक्ट टैक्स तो भाई अगर एक पुअर इंसान भी कुछ खरीद रहा है तो उसको देना है, तो उसको भी देना है। तो अल्टीमेटली ये पॉवर्टी बढ़ाती है, अल्टीमेटली ये सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी बढ़ाती है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जस्टिस नहीं है। बिकॉज आप इकोनॉमिक सैंक्शंस ले भी कर रहे हो किसी कंट्री के इंपीरियलिस्टिक मोटिव्स को कंट्रोल करने के लिए या उसके ग्रोथ रेट को कम करने के लिए, जो भी हो। अब मैं अभी पेपर देख रहा था, तो पेपर में मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा सैंक्शंस जो लगे हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर लगे। यस यस यस, इट इज सरप्राइजिंग। मतलब सबसे ज्यादा तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रहा है वो 100% एक कंट्री के टेरिटरी में हो रहा है, और वो उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होना चाहिए उस ह्यूमन राइट्स को रोकने के लिए। इंटरनेशनली इसका कोई खास रिलेवेंस नहीं है। दूसरी बात ये, दूसरा क्वेश्चन जो है वो बियर, मैंने बता दिया कि ये एकदम आम लोग बियर करेंगे अगर इकोनॉमिक सैंक्शन लगता है। यस यस एग्जैक्टली। तीसरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन ऐसे भी होता है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर आप सैंक्शन लगाते हैं उसमें भी ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड, क्योंकि अगर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो सरकार तरह तरह के इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, जो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स और अथॉरिटी को चेक करता है। तो ये बात तय है कि अगर सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो ह्यूमन राइट्स कर्टेल होंगे या लोगों की अथॉरिटी या फ्रीडम कर्टेल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर सैंक्शंस लगते हैं तो उसका पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। सैंक्शंस लगने से आपका क्या होता है कि आपका चीजें महंगी हो जाती है। जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो लोगों को, यस सर, अनिल राजिम्बाले सर इज 100% राइट, सैंक्शन इन इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि सैंक्शंस लगने से चीजें महंगी हो जाती हैं। जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो लोगों के पास जो इनकम होती है, परचेजिंग पावर होती है, वो काफी कम हो जाती है। पहले लोग उतनी ही इनकम में ज्यादा चीजें खरीद सकते थे। अब सैंक्शंस लगने के बाद जब चीजें महंगी हो गई तो वो कम चीजें खरीद पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एग्रीगेट डिमांड को भी कम करता है, और जब एग्रीगेट डिमांड को कम करेगा तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, और इससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इससे आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रुक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब बात है कि सैंक्शंस जब इतने हार्मफुल हैं तो सैंक्शंस लगाए क्यों जाते हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जोसेफ शुम्पेटर, उन्होंने कहा था कि जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स जो है वो ब्लड है, किसी भी कंट्री का ब्लड है। तो अगर आपको किसी कंट्री को कमजोर करना है, अगर आपको किसी इंसान को कमजोर करना है तो आप उससे ब्लड निकाल लो। ठीक उसी तरह आपको किसी कंट्री को कमजोर करना है, उसके इंपीरियलिस्टिक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना है, तो आप उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन डाल दो। ये इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या है? तरह तरह के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, और फिनेंशियल एसेट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हैं इसमें कि आपके कैपिटल एसेट्स बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं।
कैपिटल एसेट्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। और कैपिटल एसेट्स के प्रभावित होने का मतलब है कि आपका कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मैं इस पर भी थोड़ा सा आता हूँ भाई, सॉरी लंबा हो रहा है लेकिन नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, इट इज़ वेल या रिवीलिंग, बहुत ज़रूरी है बेसिक भी समझने की। यस देखिए, यस कंटिन्यू। जब भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो कैपिटल गुड्स हमारे लिए महंगे हो जाते हैं या मुश्किल हो जाते हैं या उनके प्रोडक्शन घट जाते हैं। अब कैपिटल गुड्स क्या हैं? इकोनॉमिक्स के हिसाब से दो तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं भाई जो एक बार कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आगे भी काम आते हैं और वो बार बार यूज होते हैं। इसीलिए कोई कंट्री जो कैपिटल गुड्स बना रहा है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है बशर्ते जो कंट्री कंज्यूमर गुड्स बना रहा है। अब इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इंडिया को थक हार के भी कंज्यूमर गुड्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि इकोनॉमिक सैंक्शन से ये कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है, क्योंकि कैपिटल गुड्स क्या है, वो हमारे ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और वो बार बार यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जब कंज्यूमर गुड्स को हम बनाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो कंज्यूमर गुड्स एक बार कंज्यूम किया और ख़त्म हो गया। अब हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हमको कंज्यूमर गुड्स बनाने पड़ते हैं और यही कारण है कि इंडिया डबल डिजिट ग्रोथ को नहीं हासिल कर पा रहा है। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हमको लगता था कि इंडिया तो अब अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुंच ही जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कितना मुश्किल से हिंदू रेट ऑफ सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमने पार किया। बिल्कुल। और अब उसी हिंदू रेट से डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रोथ हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, बिल्कुल, कि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात कही गई थी उसी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज ग्रो कर रहे हैं। यस यस। तो आखिरी क्वेश्चन क्या था भाई, एक बार आखिरी क्वेश्चन देखना चाहेंगे। हाँ, एक मिनट दिखा रहा है, आखिरी था एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। यस यस यस। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने वाला देश कौन है? यूएस। तो आज के डेट में यूएस इकोनॉमी की फ्रेजाइल कंडीशन, उसका ब्रिटलनेस सबके सामने आ गया है। So alternative strategy will be yes sir, of course. So alternative strategy should be that developing countries should come on a similar platform and they can collectively boycott or apply a reciprocal sanction on US because हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि यूएस का एक समय में हेगेमोनी था और आज उस स्टेज में नहीं है। आज उसको रसिया भी चैलेंज कर सकता है। रसिया ने दिखा दिया, ये अलास्का समिट से रसिया ने दिखा दिया कि भाई हम अपने टर्म्स में अमेरिका को ला सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जितना गुस्से में गए थे भाई, उतने ही खुशी वापस आए। तो एक्चुअली सर इट इज परप्लेक्सिंग मी एज कि बजेंद्र ने जो कहा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द चाइनीज डायनेमिक्स in this whole scheme, because somewhere in between these talks and great powers game, China and United States of America have some understanding
कि हमको कैसे पूरे मतलब डोमिनेंस को अब मतलब हम अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इधर चाइना है तो चाइना अल्टरनेटिव बने रहे, उसमें इंडिया और रसा ना बने, वो चाइना बना रहे तो वो ज़्यादा बेटर है, वो जानता है। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यूएस के लिए बेनिफिशियल है Yes, कि yes. चाइना बना रहे। क्यों? और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना के कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, उसकी जो Yes. पॉलिसी नहीं है, चाइना के कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। अगर चाइना पूरी तरह से यूएस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, हाँ जैसे कि इंटरनेशनल मैटर्स पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है या किसी के लिए स्टैंड लेना है, तो चाइना इज अ बिट रिलक्टेंट और वो अपने इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा देखता है। यूएस का रोल क्या है? यूएस एक फादर फिगर की तरह था, एक बड़े भाई की तरह था कि कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हम हैं। तो उस रोल में चाइना नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ उसकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से चाइना उस रोल में नहीं आ सकता। लेकिन अगर रसिया बढ़ा, रसिया ने पहले भी वार्सा पैक्ट बनाया था जो नाटो को बहुत बहुत चैलेंज कर रहा था। तो और इंडिया में भी पोटेंशियल है। इंडिया भले अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करे, लेकिन इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ बिगर ग्लोबल पावर एंड रिकॉग्निशन भी चाइना से ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि चाइना के अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस बहुत ऊपर है। तो उसके हिसाब से ग्लोबल रिकॉग्निशन रसिया और इंडिया को अधिक मिल सकती है। इसीलिए यूएसए के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि चाइना एक मोस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमी उसके लिए बना रहे, मोस्ट चैलेंजिंग थिंग उसके लिए बना रहे। क्योंकि अगर रसिया बना तो रसिया फिर और चाइना इस सिनेरियो में मोस्ट बेनिफिशियल कंट्री बनकर उभरेगा, क्योंकि चाइना किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो नहीं रहा। उसको ज्यादा नुकसान हो नहीं रहा। यूएसए इज इन्वॉल्व, whether USA accept or not, USA is involved economically, politically, or by other means also. USA is involved, and Russia is also involved. इंडिया को जबरदस्ती इन्होंने कोलैटरल डैमेज बना दिया। तो अब जो इकोनॉमिक सिनेरियो मुझे दिखता है उसमें चाइना के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड दुनिया में बहुत लोग उलझ चुके हैं। अब चाइना आगे बढ़ेगा और चाइना यूएसए को 2035 तक पीछे छोड़ देगा, अब पक्का छोड़ देगा। So thank you Pranav sir for well revealing observation, and of course moving forward to Sunil sir and other participants, I have one rhetorical question also कि आने वाले समय में जो हम भी जो समझ पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जिस तरह से चाइना बड़ी ही कॉशियसली काम कर रहा है, जिस तरह से वो कर रहा है, और अमेरिका को भी ये ज़रूरत है कि एक आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट हमारा हमेशा रेडी रहे, एंड चाइना विल बी इजली ब्लेम्ड दैट ही इज़ द सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री, इट इज़ थ्रेट टू कैपिटलिज्म, एंड इन दिस वे बाय मेकिंग यू कैन से, मतलब एक हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कि अगर आपको पावर एक्सरसाइज करना है तो अदराइजेशन जरूरी है, कि एक अदर क्रिएट जरूर आप करते हैं कि हमारा पावर और अदर का पावर कौन बेहतर है। सो दिस कंपेरिजन, दिस बाइनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रन द वर्ल्ड अफेयर्स। द सेकंड थिंग इज दैट इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि हीरो बनने के लिए विलेन का पावरफुल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम, मतलब अगर हम रस्टिक और थोड़ा सा उसको और अपने भाषा में वो करें तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा कि चाइना को बनाए रखना बहुत बड़ी एक मजबूरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो नाउ 90 days एक्सटेंशन हैज़ बीन गिवन फॉर द टॉक, राइट, कि फिर से 90 days का हम एक्सटेंशन देते हैं। अभी टैरिफ हम दोनों नहीं लगाएंगे, जो हमारी व्यवस्था चल रही है उस, और जब भी ट्रेड वार हुआ है वो तुरंत सॉल्व हो गया है। हाँ तुरंत सॉल्व हो गया।
हाँ तुरंत सॉल्व हो तुरंत। गया तो है। ये पूरे वर्ल्ड को एक अगर हम केक माने तो ये केक दोनों हम ही खाएं, हमारा डोमिनेंस बरकरार रहे, ठीक है। वो मिनरल जो रेयर अर्थ मिनरल है जो लगातार हम लोग चर्चा यहाँ करते रहे हैं कि उस पर सबसे बड़ा कब्जा। एंड आई वाज लिसनिंग द न्यूज़ फ्रॉम BBC yesterday about the humanoid robotics Olympics in Chinese cities, कि वो ये कंडक्ट करा रहा है, ह्यूमनाइड रोबोट्स का ओलंपिक्स वो क्रिएट करा रहा है। एंड दे वर डिस्कसिंग मतलब मीडिया वाले डिस्कस कर रहे हैं, BBC वाले, कि नाउ डिक्लेरेशन केवल बाकी है कि वो टेक सुपर पावर बन चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि रेयर अर्थ मेटल्स पर, मटेरियल्स पर उसका कंट्रोल है। उधर अमेरिका को चाहिए ही चाहिए, बिना उसके वो उसका टेक्नोलॉजी पर जो डोमिनेंस है वो बरकरार नहीं रख। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग वो दिख रहा है कि ये दोनों अपने अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं। और सैंक्शन जो एक इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या सैंक्शन, बिना सैंक्शन के आप बिग पावर गेम जो कहते हैं, जो बिग पावर गेम जो रशिया का हो गया, चाइना का हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हो गया, कोलैटरली कह सकते हैं कि इंडिया का भी हो गया, तो क्या उस सैंक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना आप, क्योंकि सैंक्शन में जो आपने कहा कि लॉ, लीगल फोर्स उसमें शामिल होता है, वो लीगली आप पर बाइंडिंग कराता है, लीगली सारी चीज़ों को इन्फोर्स कराता है, वो केवल ओरल चीज़ नहीं होती, वो लीगली वो कराई जाएंगी। सो विदाउट सैंक्शन whether is it possible to exercise the you can say hegemonic power? तो सुनील सर से भी इस पर थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे जानना और समझना। तो सुनील सर आप अनम्यूट करें और हम लोग को थोड़ा सा इस पर बताएं। अमित जी धन्यवाद। पहली बात तो ये है क्या कि ये प्रोग्राम के बारे में हमें परसों पता चला। ओके। एक्चुअली में व्हाट्सएप देख भी रहे थे, हाँ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, दूसरी चर्चा हो रही थी वो ऑल इंडिया सेमिनार के बारे में। इसी बीच में देखा कि ये आ गया है। अच्छा अच्छा। तो मैं 3-4 कार्यक्रम से लगातार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें फायदा नजर आता है और अच्छी डिस्कशन होती है, टू द पॉइंट होता है, लोग बहकते नहीं हैं और सवाल को समझने में भी। लेकिन आज जब सुना, आज जब आपको पेपर प्रेजेंट करते हुए आपने बड़ा क्लियर है, हमसे तो ये 32-35 पन्ना पढ़ना 2 बार कोशिश किए, बहुत दूर तक पहुंचे, फिर वापस पहले पन्ने में आ गए, उसके बाद फिर पढ़ने की कोशिश किए। थोड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन एक बात अवश्य हुआ क्या कि जिस सैंक्शन को हम लोग छोटे मोटे न्यूज के रूप में देखते थे, अब लगा कि सैंक्शन बाकायदे में से भी खराब की है। जी, ये बात समझ में आई। इंपीरियलिज्म के हमें बहुत कुछ पढ़ते आए हैं, हम लोग उसके खिलाफ में जो है गोलबंदी भी किए हैं, लेकिन ये सैंक्शन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, ये आप जो प्रोग्राम रखे उसके बाद ये समझ में आई और कुछ पढ़ने को मौका मिला। तो सबसे पहली बात है क्या, ये सैंक्शन जो है यूएस लगाती है, अमेरिका भी लगाता है, अलग अलग देश भी लगाते हैं, और सैंक्शन उसी पर लगाते हैं जो कमजोर होते हैं। आप कभी अमेरिका पर सैंक्शन लगाते हुए नहीं सुनिएगा, कभी जर्मनी पर सैंक्शन नहीं लगता है। एक रूस पर लगा, उसके राजनीतिक कारण अलग है, उसका इंटरनेट अलग है। ये अमेरिका जो अभी तक जो बात आई है कि अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना भी सैंक्शंस हुआ है, तो यूएसए जो है वह अगर 25% सैंक्शंस किया है, इसमें अमेरिका का शेयर जो है अकेला लगभग 40-50% है। यह अमेरिका अकेले किया है। अमेरिकन पॉलिसी नेबर डाई बेगर की पॉलिसी है, मतलब मेरा पड़ोस गरीब रहे और हम ठीक ठाक रहे, ये इसी पॉलिसी पर काम करता है। अब मैं इसका थोड़ा सा इतिहास की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो ज्यादा मेरे पास इसके पर बोलने के लिए है भी नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। मुनरो डॉक्ट्राइन 1823 में आया था। उस वक्त क्या थी
कि अमेरिका जो था वहां पर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे, दैट वाज द कॉलोनी ऑफ स्पेन, ब्रिटेन, ये इन देशों की कॉलोनी थी। उसमें ज्यादा स्पेन था और ज्यादा फ्रांस का था। मुनरो अमेरिका का राष्ट्रपति था। उसने मुनरो डॉक्ट्राइन लाया 1823 में कि भाई आप खाली कर दीजिए, मैं इसके इंटरनल मामला में, इसके एक्सटर्नल मामला में अमेरिका हम देखेंगे। अब सोचिए, आप जाइए, हमको लूटने दीजिए। ये सीधा सीधी यही बात हुआ नक्सल में। मैं उसके डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। अब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला, ये छुपी हुई नहीं है। और लास्ट मोमेंट में वुडरो विल्सन जो है सो वहां के राष्ट्रपति हुए। तो वुडरो विल्सन जो है, जो राष्ट्रपति हुए, वह 1919 में जब लीग ऑफ नेशंस बन रहा था तो उसके इनॉग्रेल सेशन में उन्होंने भाषण दिया कि सैंक्शंस आर मोर इफेक्टिव देन वॉर। अब सैंक्शन ही लगाया जाए और ये सैंक्शन को ही जो है एक वार के रूप में दर्जा दिया, क्योंकि वार का विरोध होता है। या उन्होंने 1919 में कहा, कंट्रोवर्शियल सैंक्शन के बारे में पहली बार ओपनली बोला, वो भी लीग ऑफ नेशंस के इनॉग्रेल सेशन। नाउ वी कम टू द 1990, सीधे वहां से जंप करके यहां आते हैं। 1990 में जब इराक पर सैंक्शन लगाया गया, तो इराक पर सैंक्शन लगाया तो उस सैंक्शन में कहता है क्या कि 5 लाख सिर्फ बच्चे 1990 से लेकर 96 केवल 5 लाख से ज्यादा बच्चे मर गए। लगाया गया था सैंक्शन, उस वक्त कोई बमबार्डिंग नहीं हो रही। 5 लाख बच्चे जो है सो वहां पर मारे गए। वह जिस कारण से भी मरे, माल न्यूट्रिशन के कारण मरे, दवा के बिना मरे, जिस चीज के भी कारण मरे। और इराक असहाय था। सैंक्शन क्यों लगाया गया था? इराक कुवैत पर हमला किया। तो यूएनओ में उसके जो है सो गवर्नर थे, क्या नाम है, ट्रोट्स्की, ऑन्ड्रो ट्रोट्स्की, ऐसा ही कुछ नाम है। उनसे सवाल किया कि आपने वहां पर जो है जब सैंक्शन लगाया तो उस सैंक्शन के दरमियान मोर देन 5 लाख चिल्ड्रंस हैज बीन डाइड, वो मर गए। और अगर आप हिरोशिमा में देखें, जो रिपोर्ट लाया गया था 6 अगस्त 1945 को, उस एटम बम में जब गिराया गया और तब से लेकर अगला 5 महीना के बीच में 1,40,000 इतने आदमी मरे। अगर दोनों जगह को जोड़ दिया जाए नागासाकी को, तो करीब 3 लाख लोग जो है सो उसके रेडिएशन का प्रभाव अभी तक है। तो कहा कि इससे ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन के कारण जो है सो या लैंसेंट का जो है वो अध्ययन है। तो इकोनॉमिक सैंक्शन के कारण जो वहां पर मौत हुई, अभी देखिए। और वह जो गवर्नर था उसने कहा क्या कि इस चीज का प्राइस जो हमने इराक में किया वो बिल्कुल सही काम किया, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। यह सवाल सुनने के बाद या उत्तर सुनने के बाद कितना असंवेदनशील की तरह बोला कि इसका प्राइस तो इराक को चुराना पड़ेगा। और इराक ने कैसे प्राइस, जो वहां के वल्नरेबल्स थे, जो वहां के बच्चे थे, वो वहां पर मारे गए। देखिए एग्जाम्पल है, आपके सामने खुला एग्जाम्पल है। और 2019 में वेनेजुएला में जब लगाया गया, तो वेनेजुएला में लगाया गया और पोम्पी यूएस सेक्रेटरी था, उसने कहा कि अगर यह वेनेजुएला अगर हमारी बात को समझने के लिए नहीं तैयार है तो इन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और कीमत कैसे अदा करेंगे? हम सैंक्शन लगाएंगे। अभी जो प्रणब जी जो बतला रहे थे, जो आपके क्वेश्चन में चर्चा है कि वहां पर गरीबी बढ़ेगी, वहां पर जो है सो दिक्कत बढ़ेगी, लोग का मुद्रास्फीति बढ़ेगा, उसको जो है ब्लॉकेड होगा,
तो इसके चलते जो परेशानी होगी वह परेशानी उनको भोगना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका, अब आ जाइए अमेरिका पर। पटेल साहब, उर्जित साहब जब यह कोट कर रहे थे अमेरिका को, तो उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को आपत्ति होगी। बिल्कुल आपत्ति होगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो इजराइल के साथ हैं और ऐसे भी लोग हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एक चीज देखिए, पिछले साल ये मोदी जी गए थे यूक्रेन के दौरे पर थे। जेलेंस्की क्या कहा, सारी दुनिया आप समझ गई क्या, ये वार जो है जो यूक्रेन में चल रहा है 2 साल में भी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि रूस को अमेरिका पर विश्वास नहीं है और अमेरिका खुले मन से यह काम नहीं कर रहा है। ऐसा अलास्का की मीटिंग 10 बार भी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं सोल्व होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की नीयत ठीक नहीं है। उसकी नीयत कहां पर है? उसकी नीयत है जो यूक्रेन में रेयर अर्थ मेटल्स मिलता है उस पर। एग्जैक्टली सर, यस। तो अब जो है, और रूस जो है उसको डर यही है क्या कि अगर हम यहाँ से लड़ाई बंद कर देते हैं, ये आकर के मिसाइल मेरे बॉर्डर पर लगा देगा, जो पहले भी ये चर्चा में थी। अब देखिए, अब विरोध करने की बात है। दुनिया का जो कंट्राडिक्शन है, वह 8 कंट्राडिक्शन में मैं 2 कंट्राडिक्शन की चर्चा करना चाहूंगा। सबसे मूल कंट्राडिक्शन कहां पर है? मूल कंट्राडिक्शन है इंपीरियलिज्म एंड ग्रोइंग सोशलिस्ट कंट्री चाइना। ये दोनों के बीच में जो है यह कंट्री है। शायद मैं सोशलिस्ट होता, अमित जी आपको हो सकती आपत्ति है, हो सकती है, लेकिन मैं उसे ग्रोइंग सोशलिस्ट कंट्री मान रहा हूं। और दुनिया में किसी को भी भूखे मरने का अधिकार है, वो अपना टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, अपने कंट्री को विकसित कर रहा है। और सवाल है, यह लिबरलाइजेशन के दौर में जो 4 प्रमुख आदमी थे, मार्गरेट थैचर, उस वक्त निक्सन था, उसमें डेंग हिसाओपिंग का भी नाम था। इन्होंने कंट्री को लिबरलाइज किया न्यू ऑर्डर में। सोवियत रूस के खत्म होने के बाद कोई विकल्प नहीं बचा। और चीन क्या था, यह दुनिया में भी नहीं हुआ। आज चीन क्या है? चीन कम से कम ये तो नहीं है कि किसी को इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर रहा है, किसी पर जाके हमला कर रहा है, किसी का जबरदस्ती कर रहा है, ही नेगोशिएट्स। बट अमेरिका क्या है? आज तुम रसा को तेल देना बंद कर दो। अगर तेल खरीदना बंद नहीं करते हो तो मैं 25% और बढ़ा दूंगा। व्हाट इज द वे? ये इसको कहते हैं यूएस प्रेशर, इसको कहते हैं ध्वंस जमाना। वह अपने आज भी, और उसका ध्वंस जो है सिर्फ एक चीज पर है। आज भी मिलिट्री स्ट्रेंथ में अमेरिका बहुत आगे है चीन और रूस दोनों से। उनके पास जो मिलिट्री पावर है, जो आर्सेनल्स है, जो वेपन्स हैं, वह वेपन्स के ही बल पर लड़ता है। और दुनिया में अभी देखिए ईरान में क्या किया। तो अब इकोनॉमिक सेंस का होता है। एक समय में दक्षिण अफ्रीका का था, वो बात तो समझ में आती है। वहाँ फेसियल गवर्नमेंट था, वहाँ पर जो है यूएनओ उसको लगाया था, अमेरिका नहीं लगाया था, यूएनओ का था वहाँ पर। यूएनओ जब सैंक्शन लगाती है तो उसमें कुछ नरमी भी होता है, लेकिन अमेरिका जब लगाती है, अमेरिका उसी को लगाती है जो उसके साम्राज्यवादी हितों के, जो उसके इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ में होता है। जैसे आज क्यूबा, ये बताइए, क्यूबा जो है दुनिया में कहीं लूट रहा है? नहीं। क्यूबा अगल बगल के देश में हमला भी कर रहा है? नहीं। कहीं पर मिलिट्री कूप भी कर रहा है? नहीं। वह क्या आतंकवाद कर रहा है? कोरोना के टाइम में क्यूबा के ऊपर जो है, जब यह ट्रंप जा रहा था, उसने, जब राष्ट्रपति का ये होता है क्या कि जब जैसे प्राइम मिनिस्टर भी जिस वक्त इस्तीफा देते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर साइन करते हैं,
वह जो इम्पोर्टेंट पेपर साइन करने हुए ये इतिहास में 2020 में ट्रंप जब जा रहे थे उसने दस्तखत क्या किया? क्यूबा इज ए टेररिस्ट कंट्री। कहां वो टेररिज्म कर रहा है हमें समझ में नहीं आती। वेनेजुएला के अंदरूनी जो स्थिति है बहुत लोग का बहुत विचार, वेनेजुएला क्या कर रहा है दुनिया में कहीं। इकोनॉमिक सैंक्शन आज के समय, आप देखिए चिली में घटना हुई, सॉवरेन गवर्नमेंट बनी, उसको इसने गिरा दिया, वहां पर मिलिट्री को फड़ा के गिराया, अपनी जहाज भेज दिया वहां पर, CIA के द्वारा वहां पर किया। अमेरिका की थू हुई, वाटरगेट कांड के बाद निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। वियतनाम में 10 साल बमबार्डिंग किया, क्यों? वियतनाम मेरी बात को माने, फिर भी वियतनाम सरेंडर नहीं किया। वह एक देश था जहां वहां का एक एक आदमी साम्राज्यवादी विरोधी था, उसने घुटना नहीं पीटा जाना। तो अमेरिका अब जानता है कि अगर कोई युद्ध होगा, अगर हम युद्ध करेंगे, अगर हम बमबार्डिंग करेंगे, अगर हमारा 2-4 हजार सैनिक मर जाएगा तो हम तुरंत भाग खड़े होंगे। हम सामानों का नाश कर सकते हैं, हथियार का नाश कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आदमी का लॉस नहीं सकते। यह अमेरिका के नीति के पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वह सिर्फ सपोर्ट किए रहा, मदद किया, वह लड़ाई में कहीं नहीं उतरा। तो अब देखिए ये जो है सो, तो इसीलिए इकोनॉमिक सैंक्शन जो उर्जित पटेल कहते हैं वो वार से भी खराब चीज है। वो वार से खराब क्या है? जब लड़ाई होती है दैट इज लोकलाइज्ड। जैसे मान लिया कि पटना में बम गिरेगा तो हम पटना छोड़ के बेगूसराय चले जाएंगे, कटिहार चले जाएंगे, यहाँ पर लड़ाई हो रही है, यहाँ पर लड़ाई। लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रभाव जो है वह लोकलाइज नहीं होता है, यह बहुत बड़े दायरे में होता है, पूरे देश के भीतर में होता है। और इस इकोनॉमिक सैंक्शन में अभी जो प्रणब जी बतला रहे थे, उन्होंने सारी एक एक बात को रखा उसमें। जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके सारे जो प्रॉपर्टी हैं जो बाहर में है उसको फ्रीज कर देता है, और दूसरे देश उससे संबंध भी खराब कर लेते हैं। जैसे मान लिया क्या कि रूस पर प्रतिबंध लगा, तो रूस इसलिए सस्टेन किया, रूस उस वक्त भी दावे के साथ कहा क्या कि आप हम पर, जो ग्रुप 7 के कंट्रीज थे, आप हम पर जो है बैन लगा रहे हो, इकोनॉमिक सैंक्शन कर रहे हो, ठीक है हम तुमको तेल नहीं देंगे, हम तुमको गैस नहीं भेजेंगे, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भेजेंगे। तुरंत चाइना तैयार हो गया। तो चाइना एक बहुत बड़ा अमेरिका के खिलाफ में बुलवर्क है जो उसके मनमानीपन को रोकता है। ये बात को तो मानना पड़ेगा। जैसे 2024 दिसंबर महीने में बाइडेन क्या किए कि उन्होंने चीन के ऊपर कहा कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अब देना, इसको बैन कर देते हैं। उसने आज बैन किया सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भेजने। चाइना दूसरे दिन क्या किया? जो टीन है, टीन की सप्लाई सबसे ज्यादा चाइना करता है विदेशों में, चाइना तुरंत बैन कर दिया कि अब इसको टीन नहीं देंगे। SB उसका जो है सिंबल होता है, उसने बैन कर दिया, हाहाकार मच गया। अब टीन का उपयोग क्या है? टीन का उपयोग सिक्योरिटी में जबरदस्त होता है, चाहे मोबाइल का सिक्योरिटी हो, चाहे लैपटॉप का सिक्योरिटी हो, चाहे हथियार का सिक्योरिटी हो। अब हम खत्म कर रहे हैं, हम ज्यादा और समय नहीं, बहुत समय हो चुका है। तो ये जो है उस पर उसने जो है बैन लगा दिया, तुरंत ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। अमेरिका जो है सो अमेरिका टैरिफ लगाया, इसने लगाया। तो अब ये है क्या कि इसकी रेमेडी क्या है? वो जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है वो तो लगाएगा इसलिए लगाएगा कि भारत को सबसे बड़ी चिंता रहती है चाइना के बारे में। चाइना की चिंता भारत के बारे में नहीं है, लेकिन इंडिया का कंपटीशन किससे है? भारत से, चाइना से है।
तो अब वहां जब डेवलपमेंट होता है तो हम लोग तो अच्छा समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके छाती पर सांप लौटता है, क्योंकि चाइना के प्रति जो घृणा का भावना यहाँ पर फैलाया है वह आज तक नहीं गया है। जबकि पूंजीवाद वहां पर जो आज अमेरिकन इंपीरियलिज्म चाइना से घबराया हुआ है, उसी का पूंजीपति आकर के चाइना में इन्वेस्ट किया और वहां से सामान उसको जाता है और वह परेशान है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गया, बंद होता जा रहा है, घटा लगते जा रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शन जो है, मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि बहुत अटॉपिक है, लेकिन एक दिन में बहुत ज्यादा टास्क दे दिए 35 पेज पढ़ने का, इसको पार्ट वाइज करते हैं तो ज्यादा। दरअसल सर ना वो जानते हैं मटेरियल सर ये मंडे को ही सर्कुलेट हो गया था, लेकिन ये एनएससी वाले मीटिंग का जो मटेरियल था ना वो इतना चल गया, मटेरियल बार बार पढ़ रहे थे, इसका पढ़ नहीं रहे थे। वही सही कह रहे हैं, मटेरियल आपने बहुत पहले भेज दिया। दूसरा बात है क्या कि प्रणब जी इकोनॉमिक्स के हैं, मैं तो इकोनॉमिक्स का हूँ नहीं, मुझे तो 4-5 दिन लगेगा उसको समझने में। आप जानते हो उसको पढ़ने के लिए एक अच्छा चीज क्या हुआ कि सैंक्शन के महत्व के बारे में समझे। और अभी जो क्वेश्चन आया रूस और अमेरिका के अलास्का मीट पर, मैं तो यही कहूंगा कि तीनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, एकदम नहीं है। अभी अलास्का मीट का जो पूरा डिटेल से अभी नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन ये है कि तीनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं, एकदम विश्वास नहीं। रसा डिफेंसिव मूड में है और अमेरिका ऑफेंसिव है। अमेरिका को यूरोप में जाके करना है, वो तो उसके बगल का देश नहीं है, और इसके बगल, और जेरेड जो है वह जोकर कम है, वो अमेरिका का पपेट ज्यादा है। नेक्स्ट भी सर अभी रखेंगे, फिर इस पर रखा जाएगा एक दिन और इन बिटवीन करके। ये जो है अभी तो चल रहा है ना अमेरिका वाला सवाल, टैरिफ हुआ, इंपीरियलिज्म हुआ, इंपीरियलिज्म पर तो खूब बहस हो रही है, तो हम लोग भी करें तो ज्यादा अच्छा नहीं, उसी को जैसे रिफ्रेम करके वो करेंगे, ट्रेड, टैरिफ, इंपीरियलिज्म, सैंक्शन, मतलब एक कलेक्टिव टॉपिक हम लोग वो करें, जो ओवरऑल ट्रेंड जो अभी चल रहा है उस ट्रेंड को हम लोग ट्रेस कर पाए। ये बहुत अच्छी आरबीआई के गवर्नर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, जब वो लिखे सही बात exactly। मेरी जो अपनी भावना है, हम जो सोचते हैं उसको बोलने में हम दिक्कत नहीं करते, एकदम नहीं करना चाहिए सर, उसमें कोई ईगो का बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है डिस्कशन, बहुत बढ़िया रहा। तो आज यही कंक्लूड करते हैं हम लोग, और फिर नेक्स्ट डिस्कशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 के तौर पे आज यही डिसीजन रहेगा, पार्ट 2 के तौर पे इसके कंक्लूड करेंगे थोड़ा सा रिफ्रेम करके, ठीक है? तो तब तक टाइम भी मिल जाएगा। और फिर भाई एक बात और करनी है हमको बस थोड़ी सी। हाँ बोलिए सर। जो नेशनल सेमिनार होने वाला है उसमें यही टॉपिक क्यों नहीं रखा जाए, जब हम लोग इस पे इतना चर्चा कर चुके हैं तो क्योंकि हम जितना भी ग्रुप में देखे तो कुछ लोग हेल्थ को लेके बहुत मतलब हेल्थ का पॉइंट उठा रहे थे, तो ये टॉपिक भी रखा जा सकता है नेशनल सेमिनार में। और क्योंकि अभी ये करंट टॉपिक है, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, असल में बहुत ही रिलेवेंट है, करंट है, और इस पर बाकी लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरी अपनी जो मानना है, हेल्थ का टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है और सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। मैं तो हर सप्ताह में डॉक्टर के पास जाता हूँ। आज के तारीख में जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, मैं लोग भी जाते हैं, उनकी बात को बिताते हैं। हम लोग हेल्थ का प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है, और ये एक ऐसा बिजनेस हुआ, आप कॉमन आदमी से पूछ लीजिए, आप पढ़ाते हो, आपके विषय में कब बोलेंगे अच्छा या खराब, लेकिन डॉक्टरों के विषय में नजरिया देखिए, जो लूट है उसके विषय में नजरिया देखिए। यह बहुत ही सही टॉपिक है, बहुत इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। हम इसको डिस्काउंट नहीं कर रहे सर, हेल्थ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है कि सिर्फ फिजिकल मेंटल हेल्थ नहीं, इकोनॉमिक हेल्थ। हम ऐसे मजाक कर रहे थे। असल में प्रणव सर एक चीज है यहाँ जो हम लोग दूसरा टॉपिक को किए थे, लेकिन
असल में वो लोग डॉक्टर हैं, ठीक है। और तमिलनाडु यूनिट ही मतलब पहचान, और डॉक्टर शांति भी डॉक्टर हैं, उनके पतिदेव डॉक्टर रविंद्रनाथ भी डॉक्टर हैं, तो वो लोग अच्छा। और जो आंध्रा का यूनिट है डॉक्टर रजनी वगैरह, वो सब डॉक्टर हैं, बाई प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं। उन लोगों का ये वो था कि मतलब अगर हम लोग कराएंगे तो हम लोग हेल्थ ओरिएंटेड ही वो कराएंगे, और थोड़ा सा जो यूनिट करवा रहा है तो उसको थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन वो जो है देना पड़ता है कि वो हाँ वो उनका डिस्क्रिप्शन होगा। हाँ, तो वो एक ब्रॉड टॉपिक ही रखा जाएगा। यही एनईसी मीटिंग जो होगा ना, जो भी जिस दिन भी हो उस दिन रहना होगा, और इसको एक ब्रॉड वो बना करके इसीलिए मीटिंग रखा गया है। ओवरऑल तो तय ही है कि उनको करना है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक रखा जाए जिस पे कॉमनर्स भी लिख सकें। ऐसा नहीं हो कि मतलब केवल उस पर डॉक्टर ही लिखें, राइट टू हेल्थ हो सकता है या उस तरह की बातें हो सकती हैं। तो वो एनईसी वाली मीटिंग जो होगी ना, उसमें थोड़ा सा अपना वॉइस किया जाएगा। उसको तो मैं उसके टाइम को लेके प्रॉब्लम हो रहा था, टाइम क्या रखा गया है? टाइम शाम में ही होगा, लेकिन डेट को लेकर के कल फिर से वो हुआ। एक्चुअल में पार्टी का हर जगह स्टेट कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और इसी बीच में आंध्रा का भी कॉन्फ्रेंस आ गया है और तमिलनाडु का भी कॉन्फ्रेंस आ गया है, और ये सब लोग पार्टी में इन्वॉल्व भी हैं। तो वो इस वजह से वो होगा शाम में ही। मतलब हमने कहा कि 31 को हमको सर भूटान निकलना है, तो भूटान निकलने से पहले अनिल सर को बोले हैं कि 31 से पहले करा लीजिए, नहीं तो फिर हमारा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपके बिना तो तो इसी वजह से तो शाम में ही रहेगा। अब जिस दिन 30 को हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या 29 को, ठीक है। तो उसमें थोड़ा रहा जाए और इसको और ब्रॉडर हो करके, और थोड़ा सा हम लोग इसलिए भी वो हुए कि भाई वो यूनिट है और अपना अपने से कर रहा है, तो भाई उसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन। लेकिन अमित जी आज वाली टॉपिक बहुत अच्छी थी सर, इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। तो सबको जितना भी हम लोग किए, बहुत अच्छा डिस्कशन। सब लोग अच्छा बोले, हाँ, सब लोग अच्छा बोले, समझा है। सबको। वो जानते हैं 35 पन्ना समझा देना खेल बात नहीं है। खेल बात नहीं है सर, एकदम। कैसे आप मेहनत करके तैयार की है। हम सर 7 दिन से पढ़ रहे हैं भाई। क्योंकि अनिल सर पहले ही हड़का दिए थे कि तुम ही को सब करना है, बाकी देख लो। वो यही कहते हैं कि तुम ही को पढ़ना, इंट्रोड्यूस करना है, हम तो रहेंगे ही लेकिन तुम ही को करना है, तो पहले से वो रहता है। अब ऐसा टॉपिक होगा तो हम जो है प्रणब जी को पकड़ लिया। हाँ, एकदम सर, एकदम सर, एकदम सर, एकदम सर। तो आज मोस्ट वेलकम, हम तो हैं। तो आज कंक्लूड किया जाए सर। सबको हमारे तरफ से, सबके तरफ से धन्यवाद आज के पार्टिसिपेशन के लिए, इस इनरिच्ड डिस्कशन के लिए सभी को। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट डिस्कशन में फिर। थैंक यू। थैंक यू। और आज का मीटिंग कंक्लूड करते हैं हम लोग। धन्यवाद सबको।